Hello students, I hope you are fit and fine. And dear students, today we will study about the concept of maxima, minima, local maxima, local minima, absolute maxima and absolute minima, the part of application of derivative. So dear students, first point is maxima or minima. Maxima or minima. What is the maxima or minima? If we have you can say it is maximum or minimum also, because the plural of maximum is maxima and the plural of minimum is minima. Maybe 2-3 points. So we are using here word maxima and minima, or we can use maximum and minimum also. Maximum and minimum. What is the maximum or minimum? Either maximum and minimum. Here students, if we have a function fx and I is the interval, and x belongs to interval. x किससे belong करता है? Interval से. And I suppose interval is, in this case there are many values, but कहीं ना कहीं इसमें एक वैल्यू c है. जो हमारा इंटरवल गिवन है वहाँ कोई ना कोई एक वैल्यू है, दैट इज c. अगर मैं फंक्शन में c पुट करता हूँ, ओके, हमने c को किस में पुट किया? फंक्शन में पुट किया. एंड जो हमारा x है, x की जो अदर वैल्यूज हैं c के अलावा, ये वैल्यूज हो गई, ये वैल्यूज हो गई, और ये अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं, मीन्स x belongs to interval. Here x belongs to interval. X belongs to interval, and if fc is greater than fx, fc is greater than fx, then क्या कहलाएगा? ये मैक्सिमम. मैक्सिमम एट c. मैक्सिमम एट c एंड मैक्सिमम वैल्यू इज fc. मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? fc. क्लियर? इन द सेम वे फॉर मिनिमम, fx is function, I is interval and x belongs to the interval. और ये जो इंटरवल है हमारा, इस इंटरवल में ही डिफरेंट वैल्यूज हैं, और वहाँ कहाँ न कहाँ आपके पास कोई वैल्यू लाई करती है, डेट इज c. अगर मैं c को फंक्शन में पुट कर देता हूँ fc, and fc is less than fx, then x belongs to interval. तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? मिनिमम या मिनिमा, एंड मिनिमम एट c and value is fc. So dear students, about maxima and minima क्या कंसेप्ट होगा? अगर आपके पास कोई फंक्शन है और इंटरवल गिवन है, और उस इंटरवल में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है c, अगर उसको फंक्शन में पुट कर दिया जाए, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन द fx फ्रॉम अनदर पॉइंट्स, तो क्या होगा? मैक्सिमम. और इन केस ऑफ लेस, अगर लेस रहे सभी पॉइंट से, दैट इज केस ऑफ minimum. That is case of minimum. Sometimes fx
and given interval is I, given interval is I, तो कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं इन विच fx is greater, fc is greater than, fc is less than also. In that condition c is extreme point. ऐसी कंडीशन में c क्या होगा? Extreme point. C is extreme point. Now with the help of graph, you know, when I will take, okay, maybe modulus function graph also, one straight line graph also, you can observe where is it is maximum, minimum, minimum. Okay, so now in this way you can find out the point of maxima or minima. Now let us see some example. Now we have three figure, first, second and third. Now you will observe in figure first, a function at the point fc is highest, maximum. In the given curve you can say here is bending, यहाँ क्या है? Bending है, curvature ज़्यादा है, and highest, so it is for maximum. यहाँ देखिए fc at lowest, so it is for minimum. And in case of between second part, at 1 is minimum and 4 as maximum. Clear? So in this way, by graph we can see what is the part of maximum, what is the part of minimum, either both maximum and minimum. Now we have one example. हमारे पास एक example है, that is fx is equal to x square. X belongs to real. To find maximum or minimum. You know, if fx is x square and x belongs to real, and your real is negative, positive, everything, minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity, we have two methods for finding the maximum and minimum. तो you know, आपको सोचना है सभी रियल में x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिस पे ये मिनिमम आएगा. You know, स्क्वायर क्वांटिटी है x, अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे तो अभी रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव. मीन्स अगर ये डोमेन है तो रेंज क्या होगा? 0 to infinity. What is range? 0 to infinity. अगर आप इसमें सभी रियल पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 भी आएगा, बट अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव. तो बाय ऑब्जर्वेशन आपका 0 इज मिनिमम वैल्यू, 0 is minimum value, so it is maximum, it is minimum at 0, minimum at 0, and minimum value is also 0, 0 square 0. Clear? And for maximum आपके पास 0 से इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी तक तो वी हैव वैल्यू ऑल्सो इन्फिनिटी. ऐसे केस में नो मैक्सिमम, नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा. क्लियर? नो मैक्सिमा. अगर आपने देखा, ऑब्जर्व किया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हम कोई भी रियल पुट करते हैं तो इन केस ऑफ 0 वी विल गेट 0, दैट इज मिनिमम. बट इन केस ऑफ हायर वैल्यू वी हैव मोर ऑप्शन, हायर टू हायर टू हायर, नॉट डेफिनेट वैल्यू. अगर आपके पास हायर में डेफिनेट नहीं है या फाइनाइट नहीं है, सो लोवेस्ट में भी डेफिनेट फाइनाइट नहीं है, देन नो मैक्सिमा. क्लियर? आइदर नो मिनिमा. तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन ये है तो हमारा रेंज क्या निकलता है? 0 to infinity. सो मिनिमम एट 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0, बट नो मैक्सिमा. बाय यूजिंग ग्राफ
fx is equal to x square means y is equal to x square. It is a parabola. Parabola form. In parabola form, you know, minimum is 0 and no maxima, because we don't know the point where it will maximum. Clear? तो आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी ले सकते हैं. अगर मैं इसी के साथ लेता हूँ मॉडुलस x, मॉडुलस x. सो इन केस ऑफ मॉडुलस x, यू नो, अगर हमारा डोमेन रियल है तो रेंज क्या आएगा? सेम एज 0 टू इंफिनिटी, बिकॉज मॉडुलस में क्या होगा, एवरी नेगेटिव इज पॉजिटिव. और इन द ग्राफ ऑल्सो, आप ग्राफ को ऑब्जर्व करना, ये मॉडुलस फंक्शनल ग्राफ जाएगा. सो हेयर मिनिमम इज 0, मिनिमम इज 0 and minimum value is f0 is also 0. For maximum no maxima, because आप देख रहे हैं मैक्सिमम अप टू इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो कोई डेफिनेट फाइनाइट वैल्यूज नहीं है, therefore no maxima. Now if I will write fx is equal to x cube and x belongs to real. अब ऑब्जर्व करना, fx is equal to x cube, तो you know real have negative and positive. अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव में चलते ही जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव क्यूब इज नेगेटिव. क्लियर? हमें पता ही नहीं हम कहाँ तक चले जाएंगे, मिनिमम में नो मिनिमा. क्लियर? अगर आपकी वैल्यू x रियल से बिलोंग करता है, इट मीन्स वो नेगेटिव भी है और वो क्या है, पॉजिटिव भी है. अगर आप नेगेटिव में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कोई फाइनाइट डेफिनेट तो है नहीं, अप टू इन्फिनिटी है, तो -1000 -1 करोड़ माइनस इतना ही पुट करते जाएंगे, बट नॉट फिक्स्ड. सो इन दिस केस नो मिनिमा. सिमिलरली इन पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में भी हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें 100,000 करोड़ x2, तो कहीं तक भी जा सकते हैं, नॉट डेफिनेट फाइनाइट. सो इट मीन्स नो मैक्सिमा. तो इन द फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू x क्यूब, नो मैक्सिमम नो मिनिमम. और बाय ग्राफ देखना, आप ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x क्यूब इन दिस फॉर्म. तो ये नेगेटिव में भी इंक्रीज होता जा रहा है और पॉजिटिव ऑल्सो. सो वी हैव नो मैक्सिमम और नो मिनिमम इन द केस ऑफ fx इज इक्वल टू x क्यूब. क्लियर? Now one more example, fx is equal to x, but interval is 0 to 1. fx is equal to x, but interval is 0 to 1. So dear student, you know 0 to 1 open interval. So how many real number between 0 to 1? Infinitely 0.1, 0.001, 0.001 up to clear 0.99. It means we have no maxima, no minima, because 0 to 1 near to 0 हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. सिमिलरली नियर टू 1 नॉट फिक्स्ड. क्लियर? तो इन दिस केस ऑफ ऑल्सो नो मैक्सिमम नो मिनिमम. बट अगर इसी में क्लोज्ड इंटरवल हो जाता है ऐसे, देन मिनिमम इज 0 and maximum is 1. Clear? Because we have finite and definite 0 and 1 both. Clear? Now next example. Now we will discuss after maxima or minima, local maxima and local minima. Local maxima or local minima, either can you say local maximum or local minimum. What is the local maximum or local minimum? In the graph, यहाँ देखिए आप, अपने पास ये मिनिमम है, ये अगेन मिनिमम आ गया, अगेन मिनिमम आ गया. ओके, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इज मिनिमम. Similarly number of points is maximum also. ग्राफ यहाँ इंक्रीज हो गया, यहाँ अगेन
मैक्सिमम हो गया, अगेन मैक्सिमम हाइट पे आ गया। ओके, तो इन सच टाइप क्वेश्चन वी विल फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम मीन्स your graph is going on, your graph is going on means not in any proper interval, clear, not in any proper interval. Now if f be a real function, so how will you find local maximum or local minimum? If we have more than 1-2 points where the function is increasing or decreasing, either you can say कभी अप हुआ है कभी डाउन हुआ है, तो यहाँ भी आपको मिनिमम लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, इसी तरह यहाँ मैक्सिमम लग रहा है, यहाँ मैक्सिमम लग रहा है, इधर मैक्सिमम लग रहा है। अब हमें इसमें से सिलेक्ट करना है व्हाट इज़ द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो व्हाट इज़ द कंसेप्ट, क्या करेंगे आप आगे? अगर f हमारा कोई रियल फंक्शन है, ओके, f बी अ रियल फंक्शन एंड द इंटरवल c belongs to the interval, then c is called local maxima। हमारा जो c पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा कब कहलाएगा? अगर आपका एफ सी है ग्रेटर देन एफ एक्स, greater than fx, but in this case we take a small value h that is greater than 0, और उस वैल्यू को हमने c में से माइनस भी किया और c में से प्लस भी किया, क्लियर, बट x is not equal to c। Suppose we have c as 5 and 5 minus 0.1, 5 plus 0.1 means 4.9 to 5.1। when x इस इंटरवल में बिलोंग करता हो, देखिए x belongs to this interval, but x is not equal to 5 because x is not equal to c, we have taken c as 5। अगर x यहाँ बिलोंग करता है बट 5 नहीं है, तो बाकी जितनी वैल्यूज होंगी हमारे पास, अगर उन वैल्यूज को आप फंक्शन में पुट करते हैं और एक हम f5 लेते हैं और हमारा f5 अगर ग्रेटर आ जाए fx से, उस केस में वो क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर वो लेस रह जाता है देन क्या होगा? लोकल मिनिमम, आइदर लोकल मिनिमा, क्लियर। नाउ वी हैव वन वर्किंग रूल to find local maxima and local minima. What is the working rule? That is very easy. Now you, by using the concept of derivative, by using first derivative, we will find local maxima and local minima. You have done in earlier videos, f dash x is greater than 0, f dash x is less than 0, the same concept. Now let us see. What is the working rule to find local maxima and local minima? First of all, we will write fx। सबसे पहले पॉइंट्स में आपको क्या करना है? गिवन फंक्शन को लिखना है, और इन सेकंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव, आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, और इन थर्ड स्टेप डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 लेंगे। डेरिवेटिव को क्या पुट करेंगे? इक्वल टू 0 एंड सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x, आप उसको x के लिए सोल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड सम वैल्यूज x1 x2। अगर क्यूबिक होगा देन 3, क्वाड्रेटिक 2, लीनियर 1, ऐसे वैल्यूज निकालेंगे। ओके, नाउ वी विल चेक
in f dash x. We will check in f dash x. Suppose we have value x1. First we are taking x1. जब हमने x1 को लिया तो h सपोज करो ये हमारा c आ गया, तो हम यहाँ क्या लेते थे, c माइनस एच और c प्लस एच. ओके, इन दिस केस इफ वी आर टेकिंग x1, तो हमें x1 के लेफ्ट टू राइट चलना है. क्या चलना है, लेफ्ट टू राइट. तो सपोज करो x1 से लेस अगर हम h ले लेते हैं तो x1 माइनस एच, ये फंक्शन में पुट करेंगे डेरिवेटिव में. फिर आप डेरिवेटिव में पुट करेंगे x1 प्लस एच. ये स्टूडेंट क्या करना है, हमने fx लिखा, डेरिवेटिव निकाला, जीरो पुट किया एंड सोल्व फॉर x. x का डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट किया, x1 x2. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग x1, तो मैंने x1 में से एक वैल्यू माइनस किया, वो डेरिवेटिव में पुट किया, और एक बार प्लस पुट के डेरिवेटिव में पुट किया. अगर सपोज करो यहाँ जो आपका आंसर आया है और यहाँ जो आया है, अगर ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, मीन्स वी आर गोइंग टू पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो इस केस में हमारा कहलाएगा लोकल मैक्सिमा. क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा. बट अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी इस केस में नेगेटिव आंसर यहाँ पॉजिटिव, देन लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा. समटाइम्स क्या होता है, नो चेंजेस, प्लस टू प्लस रह जाए, माइनस टू माइनस. ओके, देयर आर नो चेंजेस, कोई भी चेंज नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा, नो लोकल मैक्सिमा, नो मिनिमा, और क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है. ऐसा क्लियर, कौन सा पॉइंट आ जाता है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है. इन दिस केस if no changes, then critical point, then we call it point of inflection. Point of inflection. Point of inflection. So dear students, fx है, f dash x निकालेंगे, f dash x को 0 लेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, फाइंड डिफरेंट वैल्यूज, और वो डिफरेंट वैल्यूज फिर इंटरवल में लेफ्ट टू राइट पुट करेंगे. अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं देन लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा, और नो चेंज इन साइन देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव रूल. विच रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल. यानी वी कैन फाइंड द local maxima and local minima by using first derivative rule. Clear? Now one example based on the, now we have one graph. In this graph we will discuss point of local maxima and local minima. Now dear student, यहाँ आप देखिए ध्यान से, first point is C1. Clear? Suppose we have any function, differentiate it, put equal to 0, find x, that is c1, c2, c3, c4 such as. Now at c1, c1 आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ देखिए अगर आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा. यू विल ऑब्जर्व इफ f dash x is greater than 0 and here f dash x is less than 0, so positive to negative is point of local maxima. तो लोकल मैक्सिमम कब बताया था मैंने, जब पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं आप, नेगेटिव की तरफ. At the point, you know, at that point f dash x is equal to 0, because यहाँ से अगर टेंजेंट पास करेंगे तो किसके पैरेलल है, x एक्सिस.
You know, if tangent is parallel to x-axis, then slope is equal to 0, means dy by dx is equal to 0, means f dash x is equal to 0. In the same way at C2, f dash x is less than 0 to greater than 0, and we are going negative to positive. So negative to positive, then it is point of local minima. Point of local minima. In this case also a point where f dash x is parallel to x axis. Clear? But here इस point को observe कीजिए C3 and C4. Clear? Not a point where it can be differentiate, जहाँ हम derivative ले सकते हो. कोई point नहीं है हमारे पास derivative के लिए. But आप ग्राफ देखना, ये increase होकर क्या हो रहा है? Decrease. So it is local maxima. And it will also increase when it is local minima. Clear? Now we have one example to find its local maxima and local minima. So first of all, f dash x, 3x square minus 3. For local maxima minima, f dash x equal to 0. Now x square minus 1 0 divided by 3, x minus 1 x plus 1 0, x minus 1 0 x plus 1 0, x is minus 1 and 1. Now we have 2 points, minus 1 and 1, and our f dash x is, we will take 3 as common, x square minus 1, that is x minus 1 x plus 1. Clear? Now at x is equal to minus 1, तो माइनस 1 का लेफ्ट लेना, आप क्या आएगा? माइनस 1 1. माइनस 1 का लेफ्ट मैंने लिखा माइनस 1.1, तो माइनस 1.1 यहाँ पुट करेंगे आप, so you will get negative. It is also negative. Negative negative positive. और जब हम माइनस 1 का राइट लेंगे मीन्स माइनस 0.9. ये देखिए राइट माइनस 0.9, लेफ्ट माइनस 1.1. So in this case minus 0.9 minus 1 minus 0.9 plus 1. So it is negative. 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव. ओके, वी आर गोइंग पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या होता है? लोकल मैक्सिमा. क्या होगा डियर स्टूडेंट? पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा. सो लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1 एंड इट्स वैल्यू इज, तो आप फंक्शन में पुट कर देंगे -1 गिवन फंक्शन में, -1 क्यूब -1 plus 3 and solve the expression. Okay, now at x is equal to 1 and f dash x is 3 into x minus 1 x plus 1. तो लेफ्ट यहाँ 1 है 0, left of 1 is 0.9, right is 1.1. First we will take 0.9. Then you will get negative, positive, that is negative. Okay? And write 1.1 is 1.1 minus 1, 1.1 plus 1. Positive, positive. We will get positive. Now in this case we are going negative to positive. अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, इट मीन्स लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, आप फंक्शन में 1 पुट कर देंगे, f1 1 square minus 3 into 1 plus 3. Okay, so in this way dear student, you can find out local maxima and local minima. So today we have discussed about maxima and minima
also local maxima and local minima. Try to solve the problem based on the video and stay home, stay safe. Thank you.